बट दे आर इन द डिलेमा कि मैं गैप लेके कैट प्रिपेयर करके या व्हाटएवर करके आई शुड कंप्लीट माय मास्टर्स फर्स्ट, या फिर आई शुड गेट इनटू माय द जॉब मार्केट फर्स्ट एंड देन वर्क फॉर कपल ऑफ इयर्स एंड देन लेट्स सी हाउ इट गोस। टाइम मार्केट का सिचुएशन टोटली डिफरेंट था। उस टाइम लिक्विडिटी थी मार्केट में, जॉब्स थी फ्रेशर्स के लिए भी। अभी फ्रेशर्स के लिए भी काफी जो टियर 3 कॉलेजेस हैं हमारे प्राइवेट कॉलेजेस, उनसे कैंपस ज्यादा नहीं निकल रहे। दिस इज ट्रू। So if they want to go for the masters, they can go. It is a right option, I will say. How do you see the ROI of this program? Since there are no explicit placement opportunity जो कि campus drive होता है एक regular में residential में, तो आप ROI को कैसे देखते हैं इस तरीके के प्रोग्राम? उनको लग रहा है कि वहाँ से उतना ROI नहीं आ रहा है, so they are laying off. After that, I switched the company to Wipro and I got around more than 100% hike. Hello everyone, good morning. Today we have got another alumni from a tier 1 college. अगर आप भी पास आउट हैं या फिर पढ़ रहे हैं किसी ऐसे कॉलेज से जिसके आपको लगता है इन्फॉर्मेशन आप पास ऑन करना चाहते हैं टू आवर ऑडियंस, बताना चाहते हैं व्हाट्स बिहाइंड द सीन, व्हाट डू यू रिकमेंड अबाउट द कोर्स, व्हाट आर दोस प्रोज एंड कॉन्स, feel free to drop us a WhatsApp out there. We also mention our email ID, and it would be better if you send us an email first related to your profile or the college name you are from and all that, and then you and me will personally get connected and we'll ask a couple of questions about your profile, and I'm sure this is going to help a lot. If you are someone who is currently confused, मेरे लिए कॉलेज कौन सा बेस्ट है, मेरे को एग्जीक्यूटिव एमबीए में जाना चाहिए, ऑनलाइन एमबीए में, डिस्टेंस एमबीए में, मेरे लिए स्पेशलाइजेशन कौन सी बेस्ट है, इज इट द राइट टाइम फॉर मी टू गो, हाउ इज द ROI कैलकुलेटेड एंड सो ऑन। और अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जिसके पास इंफॉर्मेशन हो अबाउट ऑल द ऑप्शंस अराउंड इन द मार्केट, डू लेट अस नो। हमारा व्हाट्सएप लिंक इज ऑलवेज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें आप रीच आउट कर सकते हैं एंड माय टीम विल रीच आउट टू यू इन नेक्स्ट 24 आवर्स, डिस्कस अबाउट योर प्रोफाइल and we'll make sure that we help you at our best. तो चलते हैं पॉडकास्ट सेशन में मिस्टर कृष्णा के साथ। उन्होंने भी हमें रीच आउट किया था व्हाट्सएप लिंक के थ्रू आज से 1 साल पहले, एंड ही इज करंटली इन IIM इंदौर एंड ही इज गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट हिज प्रोफाइल एंड हाउ दिस IIM इंदौर प्रोग्राम is working out for him. So let's go. Hello Krishna, thank you so much for joining us. So good to see you in person. Finally, we have been in touch since April, right? Yeah. Your team helped me to get into the overall, give me the idea about how the curriculum is and how we can get the admission there and how we can apply an IIM. So I was really glad to meet you. Thank you. Thanks for inviting me here. Thank you so much. Pleasure is all mine. And Krishna, before we actually talk about your IIM Indore journey, which you are currently in, I wanted to understand. Basically, I wanted audience to know what your journey is all about. So you completed your graduation in year 2019, and if you can take us through since then, because you have worked in various MNCs, you have worked in work from office, you have worked in work from home. So we just want to understand your profile a bit. Yeah, so I completed my engineering from Bhopal LNCT in 2019, and after that I got the campus placement from there itself. And I worked almost till now. I have worked more than 6 years in IT industry itself, and I have worked in many MNCs like Datamatica and Wipro. Currently, I'm working for HSBC at Tech Systems, and here I am working in cloud infrastructure domain. So my overall journey is around the cloud in IT. So I have done some certifications also in GCP, and I have also skilled in AWS. Okay, wonderful. So मेरे को एक personal curiosity है इससे, when COVID came in, तो IT वाले डोमेन की तो सब लोग बोलने लगे, इनका तो निकल पड़ा, because everybody was like required a lot in the market, not just for Indian companies, globally as well. मेरे खुद के घर में भी there are few IT, QA and all that, और मैंने देखा कि the kind of jump they experience. So आपको भी COVID के बाद वो experience किया आपने आपके डोमेन में भी? Of course. So before COVID, I was in Datamatica. So after that, I switched the company to Wipro, and I got around more than 100% hike in Wipro. Yes, घर की कहानी. I have seen so many case studies recently. So it happens due to the liquidity in the market. That time, Fed Reserve has
sent a lot of liquidity in the market. So and many IT companies were picking that, and so they are getting lots of projects and all, and they all supply and demand mismatch that time. So that's how it happens. Means we got that. अभी कहाँ जा रहा है डोमेन? अभी थोड़ा रिसेशन आ सकता है आगे, हो सकता है ऐसा, बिकॉज ऑफ I will not say AI because AI have not reached at that level that can replace the humans, but still market में liquidity कम है. इकोनॉमिक साइड, आप इकोनॉमी साइड में देखोगे तो मार्केट में लिक्विडिटी अभी कम है. और आप देखेंगे तो यूएस में ट्रम्प के आने के बाद से they are eager to lower their debt. So, and due to that they don't want to do the unnecessary expenses. This overall cost cutting is going on in IT industry. Everyone is spending on FinOps, and they want to save their infrastructure cost. They want to save their overall on-prem and cloud infrastructure, whatever is running. So, and that is also reflecting in terms of employments. So employments में भी जो उनको लग रहा है कि वहाँ से उतना ROI नहीं आ रहा है, so they are laying off silently also. So it is also, so those who are they don't need to worry about that, but those who are not, they will have to. Big reason to worry. So, Krishna, एक और question था. Since you completed your graduation in year 2019, and after that you didn't plan to go directly for a master's, which is there in lot of cases. तो अगर अभी कोई person है graduation में, maybe final year है या अभी 6 महीने ही है, but हुआ है काम करते हुए या job देखते हुए, तो but they are in the dilemma कि मैं गैप लेके कैट प्रिपेयर करके या व्हाटएवर करके आई शुड कंप्लीट माय मास्टर्स फर्स्ट, या फिर आई शुड गेट इनटू माय द जॉब मार्केट फर्स्ट एंड देन वर्क फॉर कपल ऑफ इयर्स एंड देन लेट्स सी हाउ इट गोज, एग्जीक्यूटिव में जाओ या कैसे भी. अब क्योंकि आपने इस साइड का तो देख लिया और आपने अपने सारे में फ्रेंड्स ऐसे भी देख लिए होंगे जिन्होंने मास्टर्स करके जॉब मार्केट में आए होंगे, तो आपको क्या लगता है व्हाट इज द राइट वे, इररिस्पेक्टिव आपने क्या किया, मतलब थोड़ी देर के लिए अगर हम साइड में रखते हैं तो आपको क्या लगता है क्या सही तरीका है? देखिए, जब किया था 2019 में पास आउट, उस टाइम मार्केट का सिचुएशन टोटली डिफरेंट था. उस टाइम लिक्विडिटी थी मार्केट में, जॉब्स थी फ्रेशर्स के लिए भी. अभी फ्रेशर्स के लिए भी काफी जो टियर 3 कॉलेजेस हैं हमारे प्राइवेट कॉलेजेस, उनसे कैंपस ज्यादा नहीं निकल रहे. दिस इज ट्रू. सो इफ दे वांट टू go for the masters, they can go. It is a right option, I will say. If you are not getting the campus placement right after, then you can prepare for the masters and go for it. So you feel masters करने के बाद campus placement होने के chances बढ़ जाएंगे? After 2-3 years, I would say कि हो सकता है कि आपका liquidity market में फिर से आ जाए, क्योंकि एक phase आता है आप after 10 years और 15 years जहाँ आपका थोड़ा saturation point आ जाता है, right? So इस टाइम वही phase आ रहा है. तो saturation point 2-3 साल तक रहता है, फिर उसके बाद आपका फिर से बूम आना स्टार्ट होता है. तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, जैसे हमारा व्हाट्सएप लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में होता है, तो कई बार पूछते हैं कि क्या मुझे आईटी को लेके काफी क्वेश्चंस आते हैं, सिंस अभी आईटी में इतना अप डाउन देखा, तो वो बोलते हैं कि क्या आईटी डोमेन में अभी भी क्या आईटी डोमेन हैज रीच्ड टू अ सैचुरेशन पॉइंट जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इज लाइक, बिकॉज वी सी गूगल पीपल आर आल्सो लेड ऑफ एंड दे आर लुकिंग फॉर ओपन टू वर्क, या फिर हमें अमेजोन के भी इतने बड़े बड़े लोग देखते हैं, हमें इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से बड़े बड़े सीनियर्स आए हुए, तो आपको लगता है कि अभी आईटी डोमेन में जाके जॉब देखना सेफ है, या और दे शुड लुक एक्सप्लोर सम अदर डोमेन्स? वी कैन एक्सप्लोर, मींस आईटी इंडस्ट्री का ऐसा कुछ नहीं है कि आपका हमेशा सैचुरेशन पॉइंट रहेगा. आईटी का आगे बूम ही होने वाला है, डिजिटलाइजेशन बढ़ ही रहा है. If you see in core sectors also, like automobile, agriculture, pharma, there are also biotechnological companies are also coming. So IT में boom रहेगा. कोई भी डोमेन बिना टेक्नोलॉजी के तो सर्वाइव करने नहीं वाला. So IT में हमेशा boom रहेगा, but ऐसा नहीं है कि continuous boom रहे. तो एक saturation point आता है, but वो कुछ टाइम के लिए ही रहता है. But फिर वो फिर से due to technological changes, like पहले ऑन प्रेम पे थे, तो ऑन प्रेम पे लोग स्किल्ड थे, बट अभी क्लाउड पे मूव कर रहे हैं ज्यादातर कंपनीज. तो लोगों को अपना स्किल चेंज करना पड़ रहा है. दे हैव टू टेक दी ट्रेनिंग्स, एंड दोज हु आर नॉट एबल टू डू दैट आफ्टर, बिकॉज आपको भी लगता है मतलब 10-15 साल से आप जॉब कर रहे हो या 20 साल से जॉब कर रहे हो,
अब आप उस लेवल पे आके फिर से नया स्टडी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा नहीं हो पाता है। बिकम्स डिफिकल्ट, सही बात बोल रहे हैं। यस, तो वो चीजें रहती हैं, तो ले ऑफ होते रहते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि आईटी में सैचुरेशन आ गया है हमेशा के लिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, they can confidently venture out and look for skills and then further move into it. Awesome. चलो अब आपकी एकेडमिक जर्नी पे आते हैं. So we know that you are doing executive MBA, or we can call it executive MMS from IIM Indore, and you are going to finish your first year very soon. So मेरा first question ये था, actually before we come to why IIM and all that, आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन सारे डाउट्स आए, जैसे कई बार आते हैं व्हाट्सएप पे कि MMS की एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है, MMS वर्सेस MBA जो आपने रिसर्च किया होगा अपने अराउंड, तो कि उसके बारे में अगर आपका कुछ ओपिनियन आप शेयर करना चाहो, जो ड्यूरिंग रिसर्च आपको डिलेमा से करा होगा. आई वाज लाइक कि मुझे मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, so I was not looking MMS versus MBA that much, because दोनों का अपना रिकॉग्नाइजेशन है. ऐसा नहीं है कि जो कंपनी ओनली MBA प्रेफर कर रही हो MMS नहीं करेगी, ऐसा मैंने नहीं देखा है. If they want the management candidate with post graduation degree, then they will prefer MMS also and MBA also. So, I really wanted to this to come from your mouth so that people will know कि ये दोनों ही मैनेजमेंट डिग्री है. Yes. So ऐसा कुछ नहीं है. मेरा प्राइमरी फोकस था कि मुझे मास्टर्स करना है with a reputed college. So I was searching that. I have gone through some colleges from IIM also, like IIM Ahmedabad, IIM Bengaluru, IIM Lucknow is recently started their blended mode program. So and I got to know IIM Indore also have begun with this. So, but when I see the brochure of all these colleges, I found that IIM Indore is not telling explicitly online or blended mode in their degree. If you see their degree, they are not telling that. And other degree, if you see like IIM Ahmedabad का आप देखोगे, लखनऊ का भी देखोगे, they call it BPGP clearly. यहाँ पे ये लोग सिर्फ एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, either MBA for working professionals or executive MBA or executive MMS like that. Correct. So I was thinking like that may be one of the reason why they are not calling it MBA, because उनका executive MBA का अलग से प्रोग्राम चल रहा है. हाँ, वो क्लासेस होती है ना मुंबई में. Correct. So executive MMS, I think this is good, and I was also searching for the alumni status, like they are providing regular alumni status, and also like their criteria for selections, and also I found it is quite good. It is quite good, and I saw the their curriculum and all. That was also worthy, like curriculum में वो सब था जो normal आप PGP में cover कर रहे हो. And when I went into there, then I really felt that also. Means जो सब कुछ आपका PGP में cover हो रहा है, वो सब कुछ यहाँ भी cover होगा. Same business case study HBR वाली, तो यहाँ भी cover होगा. तो उसी से रिलेटेड मुझे थोड़ा डिटेल में जाना था. तो हम स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस पे. जैसे आपने कहा, आई डिड माय रिसर्च एंड आई अंडरस्टूड सिलेक्शन प्रोसेस एंड ऑल, और वो सब कुछ मुझे मैच कर रहा था, मतलब मुझे ठीक लगा. तो पहले चलते सिलेक्शन प्रोसेस पे. कैसे आपने प्रिपेयर किया? क्या आपको लगता है जो लोग नए आप पे भी प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं, दे शुड बी रेडी विद? अगर आप कुछ एक्सपीरियंस डिटेल में बता पाए. प्रिपरेशन selection criteria was like first you have to fill the form. You have to apply from their website itself. They will ask like why you want to do the MBA and whatever MMS, and what's your qualification. After submitting this form, you have to get the link for quantitative aptitude and reasoning, the written test link. So there was some people in our college who came from GMAT score also. GMAT and GRE and CAT score is also they are exempted. So they exempted from the university test. So I gave the university test, and after that I got the I shortlisted from there, and I got the call for the interview. And then they asked the interview. Interview was around 20-30 minutes of the interview. Okay. Yeah. So there they ask everything like what's your interest. So I said I have the interest in geopolitics and all economics. So they asked me the in-depth question in that also. Like okay. Yes.
So तो जो आपका इंटरेस्ट डोमेन था उसी में दे वेंट इन डेप्थ एंड स्टार्टेड yes, आस्किंग एग्जैक्टली कि आपका कितना उसमें नॉलेज है. ओके. I also said I like the cricket. So they asked like who is the current ICC president and BCCI president. These were ओह. some questions that they also asked. So तो कैसे and प्रिपेयर करें अगर किसी को अभी इंटरव्यू देना हो तो कैसे प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए और कैसे प्रिपेयर करें रिटन टेस्ट के लिए? कोई 2-3 टिप्स. रिटर्न टेस्ट के लिए आपको यूट्यूब पर आजकल काफी कुछ अवेलेबल है. आपको फ्रीली काफी कोर्स मिल जाएंगे जो काफी सारे प्रोफेसर्स हैं जो अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और आपका वर्बल एबिलिटी, ये आपको वहां से कवर हो जाएगा. बिकॉज these are the question which we have learned at the time of campus placement. When I was in 2019, that time I learned those questions. जी. सो आपको रिवीजन करने के लिए यूट्यूब पर काफी मटेरियल मिल जाएगा. एंड यू हैव टू गिव द मॉक टेस्ट आल्सो, बिकॉज मॉक टेस्ट से आपका टाइमिंग वाला पार्ट क्लियर होगा. बिकॉज काफी टाइम से जो हम लोग हैं जो आउट ऑफ टच हो जाते हैं हम. आउट ऑफ टच हो जाते हैं, तो हमें मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे काफी. लाइक इफ यू आर गिविंग मॉक टेस्ट एंड इफ यू आर clearing your mock test within the time, then कौन सी वेबसाइट वगैरह या कोई चीज आपने यूज करी मॉक टेस्ट के लिए? yeah, it was is one website. I would also give you some links so you can in the description box. Perfect. So आपकी LinkedIn प्रोफाइल के साथ since audience might have some questions also, तो वो आपको reach out करेंगे and along with that you can share those links as well. तो उसके साथ हम उनको help हो जाएगी. जी. So after that, once my interview got cleared, I got the offer letter after a few days. Like as you have selected, and then the process will start. Wow. So next question है, how do you see the ROI of this program? Since there are no explicit placement opportunity जो कि campus drive होता है एक regular में residential में, तो आप ROI को कैसे देखते हैं इस तरीके के programs में? Again, mostly asked question. Yeah, so if you see any executive program like this in blended mode, they are not providing any placement opportunity in any college. Right. So ROI is solely depend on individual, like what you are gaining from here and what you are delivering in real world after this. This is solely depend on you. ROI का measurement अगर आप placement से कर रहे हो तो ROI 0 है. बिकॉज प्लेसमेंट नहीं है. बट आपको इंडिविजुअली ही अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा अपने आप. तो मैं जानना चाहती हूँ आपके लिए आरओआई की डेफिनेशन क्या है इसमें? आपको कैसे लगता है कि यार दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गेट द आरओआई? जैसे एग्जांपल देती हूँ, अभी वी डिड अ पॉडकास्ट विद वन ऑफ द स्टूडेंट नेम है, तो उनसे बात हुआ तो उन्होंने बोला मैंने ऑलरेडी, मुझे इस प्रोग्राम में 1.25 साल हो गया, मैंने ऑलरेडी एक जॉब चेंज कर ली है और मुझे लगता है मेरा आरओआई तो वही निकल गया, इसके ऊपर तो सारे बेनिफिट्स हैं. या किसी को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने बैचमेट के एक एक्सपीरियंस बताया कि वो इंटरव्यू में गए और वहां पर उनको उसी कॉलेज के एल्यूमिनाई मिले, तो वो एक लेवल का कनेक्ट हो जाता है, कंफर्ट हो जाता है, एंड देन दे न्यू कि दिस इज हाउ. सो हर किसी का अपना डेफिनेशन है आरओआई का. आपको क्या लगता है आपकी आरओआई इसमें किस तरीके से आप देखते हैं? So I have already spent 6 years in IT industry, and I was also thinking to switch the industry either in finance or economics domain, because there I also have interest. So, but if I want to switch the industry, I would need one platform. Right? अगर मैं कल बीटेक की डिग्री लेकर जॉब मार्केट में जाऊंगा कि मुझे फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में टॉप पर जॉब चाहिए, तो इट इज नॉट रियलिस्टिक. मींस आपको उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा. बट अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, देन यू मे गेट दी बेटर चांस. डोमेन स्विच करने में आपको लगता है कि दिस इज वन डोमेन स्विच करने में, और आप जब एक इंडस्ट्री में काफी टाइम से काम कर रहे हो, सो यू कांट मींस आई एम नॉट लाइक कि मुझे एक ही इंडस्ट्री में लाइफ टाइम तक काम करना है. तो आई हैव द इंटरेस्ट इन अदर इंडस्ट्रीज आल्सो, सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दोस. मेक सेंस. कुछ बैच प्रोफाइल के बारे में बताइए. सब 5-6 साल के एक्सपीरियंस है या जूनियर हैं या उससे ज्यादा हैं? No, so there are some candidates who are more than 20 years of experience, and there are some who are like me, 6 or 7 years of experience. So overall, if you see on an average 6 to 8 years of experience candidates we have. Okay, that's the average of it. But our batch size is quite huge than last batch.
Last batch size was less than 100, I think, and this batch size is around 240 to 250. Yes. And I guess अभी next वाले बैच में और बढ़ जाएगा क्योंकि this is how rigorously they are planning to move. Yes. So एक और क्वेश्चन माइंड में था कि what I understood is आपके माइंड में ये था कि once I complete this degree, like once I will have this degree in my hand, so obviously मेरा जो जो मुझे चाहिए tools and techniques, I'll be fully equipped. और आप अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देख रहे होंगे once you will get your degree in your thing. So जो आपकी जिंदगी जो आप सोच रहे हैं कि मतलब बिफोर एंड आफ्टर वाली, वो एक हो गई डोमेन स्विच, इंडस्ट्री स्विच वाली. क्या आप ऐसा भी सोचते हैं दैट दिस डिग्री माइट गिव यू अ लीडरशिप रोल, थोड़ा उसके नेक्स्ट लेवल पे, उस तरीके से भी देखते हैं आप अपनी लाइफ को? क्या क्या आप बिफोर आफ्टर में चेंज मतलब लगता है आपको? Of course, like after means currently I'm in learning phase. I'm learning for the management degree, and here we are covering many subjects like financial management, marketing management, आपका business ethics, and your economics, microeconomics. So there are many subjects we are currently covering, and after that we will get the chance to select the elective from second. So there I would prefer to go for electives like management in IT, because I belong to the IT industry also. But if I want to go for in management role in the IT industry itself, then I would prefer that. I can prefer that. I am also thinking to go for other industries. So there also I can try like microeconomics or financial domain. So there I would get the chance to go in the management domain. But अगर मैं वहाँ lower scale पे जाऊँगा, junior पे जाऊँगा, so there they will not be able to match my current package. So this is the case. Like if I would have once I would have this course completed and I would get the degree, then if I will apply, then I will have the fair chance to go there. So this is my perspective. Rightly said. I get it. कुछ ऐसा लगता है if I ask you like if there is any one thing you would like to change the way this program is conducted, do you have anything, any feedback कि ये चीज अगर बदल सका होता तो ये चीज इस प्रोग्राम के डिलीवरी में या तो ओवरऑल कंडक्ट ऑफ द प्रोग्राम में चेंज करता? I don't think so, because because there are people in IIM team. They have created this whole curriculum for us. So I would not say there are much things, but this program can be more practical oriented. Like we are working professionals, but this program, if you see, the curriculum of this program is similar to those who are currently in PGP. It is almost 80 to 90% similar. They are attending the classes daily, Monday to Saturday, and we are attending the classes only Saturday and Sunday. Yes. So there are some gaps there. Like if you can skip some of the part which I would say will not be that useful in corporate world, then it would be better in this curriculum of ours. So ऑडियंस के लिए बता दीजिए हम पीजीपी क्या है जिसकी हम कंपेयर करें इसके साथ. So PGP is basically post graduation program which is our regular program where इसके लिए कैट में से लाखों लोग जाते हैं. उस रेसिडेंशियल जो फेमस एमबीए है उसकी हम बात कर रहे हैं फ्रॉम IIM इंदौर, और वो आप ये बता रहे हैं कि पीजीपी का करिकुलम एग्जैक्टली सेम है एग्जीक्यूटिव वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया है, विच इज एमएमएस और एमबीए भी कॉल इट लाइक मैनेजमेंट डिग्री. तो मुझे लगा कि ऑडियंस को अगर कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो दे माइट थिंक कि हम किसी एक सर्टिफिकेट के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं. PGP is a full-time MBA program which is running, and you will have to get at least 98 percentile in CAT if I'm not wrong. अभी मैं उस दिन मिले, हमने एक और पॉडकास्ट किया था, उनका 97.17 परसेंटाइल था. उसके बाद भी उनको टॉप 5 IIM नहीं मिला. 2023 कैट की बात है, तो उन्होंने टॉप 5 IIM नहीं मिला एंड ही डिसाइडेड कि नहीं मैं इससे नीचे में नहीं जाऊंगा. सो ही ड्रॉप्ड इट एंड नेक्स्ट ईयर ही अप्लाइड फॉर IIMK एंड देन ऑब्वियसली ही वाज एग्जेम्प्टेड बिकॉज आपका कैट स्कोर है एंड ही गॉट डायरेक्टली इनटू द इंटरव्यू एंड नाउ फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, आई गेस ही इज इन सेकंड ईयर नाउ. तो इसलिए अब उनको लगता है कि यार
मैं एक जेम कैटेगरी हूँ, किसी ने मुझे बताया जनरल इंजीनियरिंग मेल तो बोले उसके बाद तो ये हालत होगी इसे, तो फिर ठीक है कोई बात नहीं। उन लोग का मतलब इवन आफ्टर 98 वी आर नॉट श्योर, आई मीन दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। आई मीन आगे कंपटीशन और बढ़ेगा ही जिस हिसाब से मार्केट भी चल रहा है, तो मोर पीपल वुड लाइक टू जॉइन फॉर मास्टर्स। सो हो सकता है कंपटीशन और बढ़े। अभी 98 चल रहा है, हो सकता है 99 भी हो जाए। ठीक बोल रहे हैं आप। इसके अलावा कोई एक चीज बस बिफोर वी कॉल दिस ऑफ, इसके अलावा एक चीज मैं पूछना चाहती थी आपसे, कोई आपका करियर की में फिलॉसफी रही हो या कुछ जैसे होता है ना, वी ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स, सम थिंग्स रियली वर्क लाइक मैजिक एंड देन वी डबल डाउन लाइक 80-20 के रूल। तो अगर आपकी कोई ऐसा मैसेज, आप एक एस्पिरेंट जो फ्रेशर है या अभी भी निकल रहा है, तो बहुत स्ट्रगल कर रहा है यार, प्लेसमेंट में भी नहीं हो रहा है, अभी आगे समझ नहीं आ रहा कि एंट्रेंस कोड में भी कैसे क्रैक करूंगा एंड ऑल दैट, तो कुछ ऐसा कुछ आप उनको बताना चाहो यार, दिस इज व्हाट यू कैन डू because this is work for me and this might work for you as well. Okay, so when I was sitting in my campus placements in 2018 or 19, I have cleared around 4 to 5 written tests of the MNC companies like Capgemini, Cognizant, Infosys, but I didn't get cleared with any interview. Oh. किसी भी इंटरव्यू में नहीं हुआ था, मेरे सारे रिटर्न टेस्ट निकले। But there one company came like QDIP, and there I cleared my written test, and out of like 400 or 500 students, only 50 got selected in written test, and after that 7 got selected in the interview. Oh wow. So there what was the thing, like if you see Capgemini and TCS like company, they hire in bulk. Yes. So always they will not give you the much time to in interview. They will ask one coding question. If you will get it right, then you are selected. If not, then you will not be selected. This is the thing. Oh, okay. So interview, like वहाँ मेरा interview around 5 to 10 minutes भी शायद नहीं चला था. But here in this company, this was small cap company. So यहाँ उन्होंने आधा घंटे तक मेरा interview लिया. And they have asked like every questions, like even in mathematics also. So you got enough time to actually share who you are, yes, what yes. you know, and yes, all that. Yes. So I got enough time to express myself, and that's how I got selected. So sometimes होता क्या है कि आपको काफी ट्राई करते हैं आप, but फिर भी नहीं निकलता है. But keep trying. Something will work definitely. Awesome. क्योंकि कई बार ना बहुत डाउन फील करते हैं स्टूडेंट्स, उनको लगता है दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, व्हिच यूजुअली इट इजंट. No, so there are a lot of opportunities available in current scenario in market, right? I'm not just talking about IT, but apart from IT also, there are in finance, economics, and other domains opportunities available hain. You have to find out and you have to search for them. अगर आपको स्टार्टिंग में छोटा मोटा जॉब भी मिल रहा है, you can get it. But if you have skill, if you earn the skill from there, if you are performing, you can switch, because all the people want experienced candidate. If they can crack that, like if the initial phase of the experience, then they can get into the higher package after switching the companies. बड़ी मजेदार बात है, सारे कैंडिडेट दिखाना चाहते हैं अपनी डिग्री, दे वांट टू शो द डिग्री एंड एम्प्लॉयर वांट टू सी द वर्क. एक्सपीरियंस उनको आता क्या है, पर वो डिग्री दिखाना चाहते हैं फ्रेशर्स लोग. तो हम लोग भी बहुत हायर करते थे, ये गैप मैंने ऐसे बहुत देखा. उनको लगता था कि हम डिग्री लिया है, नाउ वी शुड बी द वन हु शुड बी रिस्पेक्टेड. इतना मेहनत करके हमने डिग्री लिया. ऐसे होता नहीं है. नहीं ऐसे होता नहीं है. मेरी सैलरी थी. हाँ जी, सॉरी. आपका फर्स्ट जॉब में आपको स्किल लगेगा. इफ यू वांट टू क्रैक द फर्स्ट जॉब, यू शुड हैव द स्किल, at least one skill in any domain, then you can get your job. If you don't have that skill, then you can keep trying, but उससे कुछ होगा. आपको skill चाहिए first job crack करने के लिए, then you will get the experience, then soft skills will work. This is what I personally experienced. Like your soft बहुत अमेजिंग बात बोली कृष्णा आपने. ये बात में बहुत अमेजिंग बात थी. पहले स्किल पे काम करो, फिर सॉफ्ट स्किल्स धीरे धीरे उसके साथ आपको हेल्प करिए. This is what we are doing in markets. This is what we are also doing in executive markets, right? We have first earned these skills in technical domain. Now we are working on the
soft skills like Hmm. presentations and all. Hmm. So we also get the regular assignment and the Hmm. projects as PGP students get. So Hmm. there also Uh-huh. we have to submit those assignments. We in each term we are presenting the PPTs. It is going similar to that curriculum, Hmm. Hmm. that Hmm. parallel curriculum. But here we have job in parallel, and here we are Hmm. being this on weekend. मन में आया था कभी ख्याल कि जॉब छोड़ के एकदम प्रॉपर रेगुलर रेगुलर वाला करना चाहिए? कभी मन में आया था या आपको लगा था वेरी क्लियर कि नहीं छोड़ने का है, मेरे को कंटिन्यू करके साथ में ही करना है? हाँ, मेरे मन में ऐसा नहीं था कि मुझे जॉब छोड़ना है, बिकॉज आई डोंट वांट टू देयर आर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन फैमिलीज, सो वो भी एक फैक्टर रहता है। आप जॉब छोड़ के फिर से पढ़ाई में जाके, और फिर अगर वहां पर आपका नहीं हुआ और वहां पे टाइम हुआ, तो फिर से आपको बैक टू जॉब ही आना पड़ेगा। सही बात है, फिर जीरो से स्टार्ट होता है, बल्कि देन दैट्स हाउ द एनवायरनमेंट इज, फिर वो यूज किया जाता है हमारी उस परेशानी को उस टाइम के लिए। सो सपोज आपका 20 लाख पैकेज है और उस टाइम आपने जॉब छोड़ दिया और फिर से आपको जॉब मार्केट में आना है, तो कंपनी आपको 20 लाख भी देने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप वर्किंग है 20 पे, तो फिर हम बात कर सकते हैं 30%, 50% और व्हाटएवर परसेंट हाइक पे। ये बात ठीक बात है, क्योंकि जैसे मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आई विल एवर लीव जॉब एंड आई विल डू माय स्टडीज, बिकॉज आई डिडंट वांट टू टेक दैट रिस्क। एंड मेरा गोल भी बहुत क्लियर था, मुझे क्या करना है, वो मुझे एक रेगुलर डिग्री से कुछ ज्यादा नहीं होने वाला था। बट ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हमें बहुत अच्छे से पता है कि हु वी आर, व्हाट वी वांट एंड ऑल दैट, तो ये कंफ्यूजन आता ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है, जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभी आपने बताया कि आई एम लखनऊ इज ऑल्सो स्टार्टेड बीपीजीपी, पर उनको एंट्रेंस कोर्स चाहिए, दे नीड जीमैट। तो उस टाइम पे इफ यू सी दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल दोज हु गॉट इंटरेस्टेड, बट देन दे नो दैट देयर इज अ ह्यूज बैरियर एंड ऑल दैट, इवन वो जॉब के साथ हम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसके साथ मिलकर हम करने की कोशिश। अब कृष्णा एक मेरे दिमाग में आया, सॉरी मैं 2 मिनट और लूंगी। आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा था वाइल इंटरेक्टिंग विद ज्योति निलानी यूट्यूब प्लेटफॉर्म? आपको कैसे हम आपको हमारा वीडियो दिखा, कैसे आप रीच आउट किए, कब कितनी देर में आपको पहला रिस्पॉन्स आया? हाउ वाज द ओवरऑल जर्नी विद अस? I was searching for executive MBA or executive masters program in YouTube itself. So I got your video and feeds. So then I watched some of your videos, and you have nicely explained everything, like who are the top universities with this, and all the parts you have covered. Thank you. So, and your team is also doing the great work in that sense. Like then I think in description itself I got the WhatsApp link. So either I don't remember, means मैंने मेल किया था या WhatsApp पे रीच आउट किया था, बट फिर वहां से मुझे कनेक्शन मिला और वहां से। तो कितना टाइम लगाया हमें रिस्पॉन्ड करने में आपको? ज्यादा नहीं लगाया, मतलब शायद 1 दिन के अंदर, विद इन 1 or 2 days। ओके, और फिर आपके साथ कौन कनेक्टेड है? आपको याद है आपको पर्सन का, जिस पर्सन ने आपको कनेक्ट किया था और जिन्होंने आपसे बात करी होगी? मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट अभी जिन्होंने कनेक्ट किया था श्रीनिधि, आई थिंक। हाँ जी, फॉर दिस राइट। ओके, कुछ हम इम्प्रूव कर सकते हैं कृष्णा हमारे ओवरऑल प्रोसेस में? कुछ आपको लगता है कि यार ये चीज आप थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं? नहीं, यू कैन टेक लाइक, जितना मैंने देखा आपके YouTube चैनल पे, काफी मतलब MBA से रिलेटेड ही है, मास्टर्स से रिलेटेड। आप MTech डोमेन भी ले सकते हो, आप बाकी के मास्टर्स भी ले सकते हो, तो हो सकता है वो आगे और हेल्प करेगा। और फीडबैक टेकन, जस्ट दैट कि मुझे उस डोमेन के बारे में बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा, क्योंकि MBA में तो मैंने 15 साल काम किया, तो हम लोग को इन एंड आउट बहुत सारी चीजें पता है, और मैं इस पे काम करूंगी। अगर आपका MBA के लाइन में एक्सपेंड करने का है, तो फिर आप वहाँ आपका फाइनेंस और इन सब के बारे में आपको आइडिया, मार्केटिंग, सेल्स, तो उस फील्ड में आप लोगों के जॉब दिलवाने में कैसे हेल्प कर सकते हैं जो Tier 3 कॉलेजेस से आ रहे हैं, बिकॉज IIM वालों को तो जॉब मिल जाएगा प्लेसमेंट में। ठीक बात है, हाँ। और लेकिन देयर आर मेनी MBA कॉलेजेस, देयर द क्राइटेरिया ऑफ परसेंटेज मींस उनका ROI उतना नहीं है, और 80-90%, तो उनके लिए क्या बेनिफिट दे सकते हैं, दैट यू कैन थिंक? उसके लिए ना वी आर बिल्डिंग अ फर्म कॉल्ड स्किलोफाई, सो वी वांट टू वर्क ऑन देयर स्किल्स एंड विद द जॉब गारंटी प्लेटफॉर्म। अभी मुझे पता नहीं मैं ये चीज अभी डालूंगी उस पे या नहीं डालूंगी, बिकॉज दैट इज बैकएंड पे बन रहा है, तो उसमें मैं सोच रही थी मैं कौन सी स्किल बता सकती हूँ, बट एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट AI स्किल, वो मेरे साथ जा नहीं रहा है, मतलब
मैं जब तक वो डोमेन को फुली समझ के फुल मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मैं नहीं हंड्रेड्स और मे बी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को उसके भरोसे बैठा सकती हूँ। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी जॉब है जो कि एआई प्रूफ भी है, जो मुझे बहुत अच्छे से आती भी है, और वो हर कंपनी में जरूरत है। दैट बेसिकली इनटू सेल्स डोमेन। अब मार्केटिंग तो देखो वो रहा नहीं, मार्केटिंग तो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, फिर वो एआई ड्रिवन चली जाएगी नॉल है। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि हमारे पास पूरी टीम, मैंने जो इससे पहले भी जॉब में देखा हैंडल की, तो हम कोशिश करते वी विल स्टार्ट विद अ सेल्स टीम। और मेरे बहुत सारी कंपनीज में एसोसिएशन है जहाँ पे आई सिंपली ट्रेन देम फॉर फ्यू मंथ्स। इसमें आपको कोई IMIT का टैग नहीं चाहिए, इसमें आपको ऐसा कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, आपकी ईयर 1 कॉलेज से होनी चाहिए, कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है। और मैं बहुत आराम से, जैसे मेरी जिंदगी बदली और अब मेरी बदली तो मेरे आने वाली जनरेशन की बदलेगी, तो वैसे ही मैं वो सोच रही थी अगर मैं उनको इम्पैक्ट कर पाऊँ उस तरीके से, और वो आगे वो एक्सपीरियंस कर सके। अगर उनके पास कोई रियल स्किल है तो वो तो अपने आप ही कुछ कर लेंगे, और अगर कहीं भी दरवाजे बंद है तो सेल्स एक ऐसा दरवाजा है, बहुत थोड़ा सा अपने पे काम कर लो एंड वो आपको एंडलेस चीजें दे सकता है। तो इससे हम एक्चुअली स्किलो फायर पे काम कर रहे थे, जो स्टार्ट विद सेल्स स्किल एंड विद 100% प्लेसमेंट, एंड देन धीरे धीरे हम और शायद और भी स्किल्स ऐड करेंगे डिपेंडिंग ऑन हमारे पास कितने एक्सपर्ट्स है उसके अंदर। तो मेरे में नया चीज है, अभी वी आर बिल्डिंग एट द बैक एंड। In fact, every industry needs the salesperson, so it's a great scope here. Means और मैंने कुछ टाइम पहले शार्क टैंक पे एक देखा था सेल्स pitch। स्कूल। हाँ, एक सेल्स का स्कूल देखा था, वो हाँ जी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं और प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, सो और दैट वो हम बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो बात कर रहे हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की जिनसे लाखों रुपए फीस है, और और बात भी कुछ 15-15 LPA की बात करे। वो मैं एक्चुअली बिल्कुल फ्रेशर लेवल पे टारगेट करना चाहती हूँ, जो अभी बिल्कुल एकदम उनके माइंड पे काम किया जा सकता है, और उनको बिल्कुल पता नहीं है अभी लाइफ में शुरू कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने जब पहली जॉब करी थी मुझे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि कुछ और करने भी नहीं देते, पेरेंट्स की भी बहुत इशू आ रहा था। मैं 600 रुपए महीने की मुझे टीचिंग की जॉब मिली, और वो मुझे ऑटो में आने जाने देते थे, वो स्टूडेंट्स को नहीं होते लेके जाते, तो मुझे और मुझे लगा वाह ये मेरी लाइफ चेंज होगी। फिर मैंने करते करते मुझे समझ में आया, और जो चीज मुझे करने में इतने सालों लग गए, अगर मैं सामने वाले को किसी को बता सकती हूँ तो शायद उसकी जिंदगी के वो 8-10 साल जो मेरे शुरू के स्ट्रगल थे वो बच जाएंगे उनकी लाइफ में। तो उस पर हम थोड़ा सा काम कर रहे थे अभी। that's Let's see. a great initiative. If you need any help from my side in that, then I can also contribute. No problem. वंडरफुल कृष्णा, मुझे बिल्कुल हेल्प लगेगा। इतना बड़ा चीज अकेले उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा ना मैं बोलूंगी सप्लाई और डिमांड का गैप है। हर किसी को सेल्स वाले लोग चाहिए, पर सेल्स वाले है नहीं, Correct. मतलब अच्छे सेल्स वाले है नहीं, क्योंकि किसी को सेल्स में जाना नहीं, क्योंकि सेल्स एक टैबू है। यार एक बात बताओ, सेल्स टैबू है क्योंकि टारगेट है, डेडलाइन है। किसकी जॉब में डेडलाइन और टारगेट है? आपकी जॉब में टारगेट डेडलाइन नहीं। मेरे घर में मैं IT वाले देखती हूँ, रात रात भर भी काम करते हैं अगर डेडलाइन मैच नहीं हो रही है तो वो तो सब जगह ही है। बट एक क्या है, एक हवा बन जाती है ना, वो चीज है। तो हाँ, वो क्वांटिफाई कर पाते हो ना, वो पता है कि वो नंबर है कि मुझे इतना टारगेट करना है। मुझे तो आई लव टारगेट, मतलब मैं तो पर्सनली मुझे तो प्यार है टारगेट से, पर वो शायद वो टैबू वैसे बन गया है कि यार ये कुछ ऐसी चीज है जो कि मे बी रिस्पेक्टफुल नहीं है, मे बी। और अगर आप देखोगे ना, अगर आप रियल स्किल है आपके अंदर, तो आपकी लाइफ 100x बढ़ जाती है कुछ सालों के अंदर। पर let's see. I have read somewhere like best millionaire and billionaire are the best sales people. I believe so. So those who knows how to sell, how to sell any product can break anything. तो सेलिंग क्या है? पुटिंग अक्रॉस योर आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव। तो जैसे अभी शार्क टैंक USA में उन्होंने बोला, इफ यू हैव अ ग्रेट आइडिया, बिजनेस आइडिया, सेट असाइड योर बिजनेस आइडिया, वर्क इन सेल्स फॉर अ ईयर और 2 एंड देन कम बैक इन द वर्ल्ड। क्योंकि अगर आप इवेंचुअली हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, और आप भी आगे तो प्लान करोगे अपना कुछ होना, तो अपना कुछ होना मतलब क्या है? सबसे पहले आपके आइडिया को पिच करना सीखना। तो वो क्या है? वो सेल्स है। चाहे आप बूटस्ट्रैप रहो, चाहे आप फंडिंग ले लो। पर चलो देखते हैं, पर हमको हेल्प लगेगा, और थैंक यू सो मच आपने इनिशिएटिव लिया। No, दिसंबर जनवरी तक हम लोग प्लान आपका कर रहे टीम वाकई में अच्छा काम कर रहा है बैकएंड पे। जितना मैंने देखा है, वो जिस तरह से आप वीडियो डाल रहे हो, अपलोड कर रहे हो वहाँ पर, आफ्टर फिल्टरिंग एंड एवरीथिंग, दे आर डूइंग रियली गुड वर्क। मींस इट इज नॉट इजी, बिकॉज मुझे पता है कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब चला रहे हैं, उनका उतना नहीं हो पाता है वीडियो का इतना एडिटिंग करना, और वो सब इट इज आल्सो अ स्किल। So they are managing on backend really well, and we can keep connected on WhatsApp and other platforms with the users and all our subscribers. So that can also help us to reach more people.
वाह, थैंक यू सो मच कृष्णा। इसके अलावा कभी आपको लगता है ना, आई हैव अ रिसर्च टीम आल्सो वो कीप वर्किंग ऑन द एडिशनल सर्टिफिकेट्स एंड ऑल दैट, अगर आपको कहीं और लगता है ना कि वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प, और आपको लगता है कि यार ज्योति व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, या क्या कैन यू गेट दिस थिंग रिव्यूड फ्रॉम योर टीम वंस कि मैं आई एम प्लानिंग टू एनरोल इन दीज सर्टिफिकेशंस, और आई डोंट नो कुछ भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प, फील फ्री टू लेट अस नो। या अभी मैं लिंक्डइन पे भी आपको एक्सेप्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजती हूँ, so feel free to let us know and we'll stay connected, and wherever we can be of any help, let us know. Sure, definitely. Thank you so much. Thank you so much कृष्णा, इतने और टाइम में आपने मेरे को इतना टाइम दिया, एंड loved meeting you and loved talking to you in detail. And I also love to meet with you here, and it was really a nice interactive session with you. And thanks for your team who are also doing the great work. Thank you so much. I'll surely pass on your feedback. Thank you. Bye bye. Bye.